Hello students, welcome back. Now let us see introduction of statistics for class 11th. ठीक है, ऑलरेडी हमने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ रखा है कि स्टेटिस्टिक्स है क्या. ठीक है, नाउ बेसिकली स्टेटिस्टिक्स है क्या उसको एक बार फिर से फ्रेश रिवाइज कर लेते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द टॉपिक. ठीक है, क्या है statistics? That is already we have studied. Statistics deals with data collected for specific purposes which can be used to make decision about them by analyzing and interpreting them. ठीक है, हम statistics में क्या पढ़ते हैं? That is basically we study about data. ठीक है, डेटा का अध्ययन करते हैं और उनका अध्ययन करके उनका फिर से हम विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें उस डेटा को किस पर्पज में यूज करना है, उसके लिए हम स्टडी करते हैं. ठीक है, नाउ उसमें हमने क्या देखा कि पहले क्या फर्स्ट काम क्या है? दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. सो हाउ वी कलेक्ट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ raw data, and that can be of two types. That is first primary data which is collected by investigator himself. वो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ जिस डेटा को कलेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, बिकॉज उसमें मिस्टेक होने का चांस सबसे कम होता है. नाउ व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सम सोर्स मींस फ्रॉम सम रिकॉर्ड्स. ठीक है, जैसे स्कूल के बच्चों की हाइट पता करनी हो तो देयर आर टू वेज. वंस फर्स्ट मेथड इज दैट actual measuring the height of each student and noting it. Second is just opening the school record and from there getting the height of each student. So in these two way of finding the data, first measuring height of each students individually will give better result compared to the information collected from the school record. ठीक है, स्कूल रिकॉर्ड से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो उतनी रिलायबल नहीं है. इसलिए नहीं क्योंकि यदि उसमें कुछ भी किसी की हाइट गलत लिखी हुई है तो वो हम गलत ही नोट करेंगे, whereas जब हम खुद से मेजर करेंगे तो उसमें गलती होने का चांस कम है. तो इसीलिए प्राइमरी डेटा आर मोर रिलायबल कंपेयर टू द सेकेंडरी डेटा. ठीक है, नाउ डेटा कलेक्शन के बाद नेक्स्ट काम क्या है? दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सो हाउ डेटा आर बीइंग प्रेजेंटेड? दैट बाय मींस ऑफ टेबल और बाय मींस ऑफ डायग्राम्स. ठीक है, by means of table we have already seen, that is ungroup frequency table and group frequency table, या ungroup frequency distribution and group frequency distribution. Thereafter we will find a central value for this data. ठीक है, that central value is measure of central tendency which is mean, median and mode. ठीक है, तो till that time we have studied up to here only, that is how to find the mean, median and mode. But this central value will not give all information which we need every time. ठीक है, they are somehow better to analyze the things, but everywhere that will not be applicable. So for this, now we need to extend our idea just higher to this to get some other values or to get some other central medium by which we can analyze the data in better way. ठीक है, so for this what we are going to do, we extend the study of statistics further. That is measure of central tendency से आगे अब हम जाएंगे कि how much data are scattered from the central value or how much they are bunched near to the central value. ठीक है, सेंट्रल वैल्यू से उनका फैलाव कितना है या वो कितने क्लोज है. ठीक है, so this type of information will help us to take the decision about so many things. Like one example we are going to take, just that is given in your book itself. ठीक है, before that let us see what we have seen studied in the previous class. that is ये हो गया रिप्रेजेंटेशन. फर्दर हो गया कि स्टेटिस्टिक्स है क्या. देन इसमें है पहला काम कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा that we have seen how we can collect. Here types of data, two types होंगे, primary data and secondary data. ठीक है, उसके बाद second thing is presentation of data.
पहला है बाय इन टेबुलर फॉर्म, सेकेंड इज बाय डायग्राम्स। डायग्राम्स में क्या क्या मिलेंगे, दैट इज बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इज हिस्टोग्राम, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एंड फोर्थ इज पाई चार्ट, ठीक है। दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन क्लास 10th, हमने सब चीज पढ़ रखा है, बट फिर भी जस्ट टू हैव अ रिवीजन आई एम राइटिंग हियर। नाउ नेक्स्ट इज third thing, after presenting the data we analyze and interpret. So for analyzing the data we need a central value, and in that we used to find the measure of central tendencies, ठीक है। measure of central tendencies में there are three types of central tendency, that is mean or average, second is median, and third is mode, ठीक है। so mean, median and mode, these three are the central tendency. Now up to here whatever the information we have, that won't be helpful everywhere, ठीक है। for this just let us take one example given in your book, that score obtained by two batsmen in a cricket match, ठीक है। बैट्समैन ए, फर्स्ट बैट्समैन है, एंड ही हैज स्कोर्ड द मार्क्स एज 30, 91, 0, ठीक है। ये स्कोर किया ऐसे, उसके बाद क्या है 64, 32, देयर स्कोर इन डिफरेंट मैचेस आर गिवन लाइक दिस, 32 ना होकर बुक में गिवन है 42, 80, ठीक है। 80 के बाद 35, 35, 117 एंड लास्ट इज 71, ठीक है। सो इन 10 मैचेस हिज स्कोर इज गिवन लाइक दिस, ठीक है। नाउ बैट्समैन बी, his score is given in 10 matches as, first is 53, 46 in first and second match, 48, 50 in 48, 50 in third and fourth match, 53, 53 in next two, ठीक है। thereafter 58 and 60 in next two, and in last two matches 57 and 52, ठीक है। this is the score of these two batsmen in two matches, ठीक है। now what we observe here कि first batsman has scored 0 in a match, ठीक है। एक टेस्ट मैच में इसने 0 स्कोर किया है, एंड हिज हाईएस्ट स्कोर इज 117 ऑल्सो, ठीक है। लाइकवाइज सेकेंड बैट्समैन, हिज मिनिमम स्कोर इज 46 ओनली, एंड हिज मैक्सिमम स्कोर इज 60, ठीक है। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर कि पहले बैट्समैन ने 10 टेस्ट मैच खेले हैं, एंड हिज मिनिमम स्कोर 0 in one match and maximum is 117 in other, ठीक है। now second batsman, he has scored 46 runs in one match and maximum 60 in the one test match, एक टेस्ट मैच में इसका हाईएस्ट 60 है और लोएस्ट कितना है 46 है। now here which batsman is better for the match? Suppose
The captain has to select the team for the next match. So who will be the best for the team? ठीक है, अब इन दोनों का यदि हम मीन देखें और मीडियन देखें तो दोनों ही सेम है। यदि हम इनका एवरेज लें और दूसरे का एवरेज निकालें, दोनों केसेस में एवरेज रिमेन्स सेम। दैट इज, यदि हम दोनों का एवरेज देखें तो आई थिंक इट इज 53 फॉर बोथ द, ठीक है। एवरेज ऑफ बोथ द बैट्समैन इज 53, मीन्स मीन ऑफ ए 53 है। इसको हम ऐसे ले लें, बैट्समैन ए बैट्समैन बी, यहां ले लें मीन, इसका भी मीन 53 है, इसका भी 53 है। मीडियन यदि हम कैलकुलेट करें तो इसका भी मीडियन 53 है, इसका भी 53 है। दोनों के मीन और मीडियन इक्वल्स हैं, बट इनके परफॉर्मेंस इस तरह से हैं, तो हु विल बी द बेटर, ठीक है। कौन सा बेटर होगा सिलेक्शन के लिए, कैसे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें देखना होगा कि किस बैट्समैन का रेंज या सेंट्रल वैल्यू से बिखराव ज्यादा है और किसका कम है। तो यदि 53 से हम देखें तो इसका जो डिस्पर्सन है यानी फैलाव है वो 0 से लेकर 117, यानी इसका रेंज 117 है। रेंज क्या है, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और सेकंड के केस में इसका रेंज क्या है, 60 माइनस 46 दैट इज 14। सो जो दूसरा बैट्समैन है वो सेंट्रल वैल्यू 53 के क्लोज है, उसके सारे रन्स के जो रिकॉर्ड हैं सेंट्रल वैल्यू के क्लोज हैं। वेयर एज फर्स्ट के केस में क्या है, वो 0 पर भी आउट हुआ है और 117 पर भी। तो अब कैप्टन को डिसाइड करना होगा कि ये टेस्ट सीरीज है तो देन फर्स्ट बैट्समैन विल बी बेटर, इफ इट इज वनडे देन सेकेंड विल बी बेटर, ठीक है। क्योंकि यदि फर्स्ट टेस्ट सीरीज में 0 पर भी आउट हुआ तो भी कोई बात नहीं, 117 भी बनाए तो भी अच्छा है, लेकिन ये सेकंड वाला ये कभी 0 पर आउट नहीं हुआ है और 60 से ऊपर भी नहीं गया है। सो ऑन एन एवरेज इसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। सो इस तरह से डिसीजंस आर बीइंग टेकन फॉर चूजिंग द बैट्समैन फॉर अ टीम, ठीक है। लाइकवाइज वन मोर एग्जांपल, सपोज यू आर गोइंग टू फाइंड द बेस्ट स्कूल फॉर योर एडमिशन। सो हाउ विल डिसाइड which school is best? Suppose in school where many students are getting more than 90 marks, whereas many students are getting fail also. At the same time, there is school where none of the student has scored less than 70 marks and nobody has got more than 90 also. So, if you want to take decision which school is better, then definitely you will choose second one because there is no student who has scored less than 70 marks. Though there is no students also who has scored more than 90, but पहले में क्या है, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर ज्यादा है तो फेल होने वाले भी ज्यादा है, लेकिन दूसरे में क्या है, 90 से ऊपर वाले नहीं है लेकिन 70 से नीचे वाले भी नहीं है और फेल होने वाला कोई नहीं है। सो इन दिस केस जब डिसीजन लेना होगा तो प्रेफरेबली जो सेकंड स्कूल है जिसमें 70 से 90 के बीच में नंबर लाने वाले बच्चे हैं उसको लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा फॉर मेकिंग डिसीजन, ठीक है। तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। विल सी दैट इज हाउ टू मेजर दिस डिस्पर्सन, यानी फैलाव को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।